गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज क्या होती है। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? देखिए, आइडेंटिटी का मीनिंग होता है, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन Identity is an equation which is true for all the values of the variables involved in it. आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज होती है वो उन सब के लिए ट्रू होती है। ट्रू मींस उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल्स, हमने पिछले क्लासों में बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें आप देख रहे हैं इस लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज right hand side. So whatever are the values of a and b, the variables, it is true for all the values of a and b. So this is called algebraic identity. Similarly, we have some trigonometric identities. तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे वो trigonometric identities को हम वेरीफाई करते हैं, कैसे उनको हम प्रूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पहले थोड़ा हम रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े हैं। वी नो दैट इन क्लास 10 द ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो लेट अस सपोज एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। सपोज वी टेक एन एंगल, these are two angles A and C, acute angle, and let us suppose this angle is theta. Clear? You know that the opposite sides of this angle, of the given angle, is also taken as perpendicular. This opposite side of right angle is hypotenuse and the other side is called base. Clear? So इसमें एंगल कौन सा है? थीटा है। इसके अपोजिट साइड दैट इज AP, it is called perpendicular. This is base and this is as hypotenuse. So these are the three sides in the right angle triangle. And with respect to this acute angle, we have six different trigonometric ratios. आप देखते हैं, सपोज इसके रेस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, वी कॉल इट साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, दैट इज इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है AB and the hypotenuse is AC. This is sin theta. Another trigonometric ratio is cos theta. Cos theta is what? Cos theta is the ratio of the base to the hypotenuse, that is B upon H, and it is BC upon AC. Clear? And the third ratio, that is tan theta, is perpendicular to base. AB upon BC. This is tan theta. So these are the basic trigonometric ratios, and the other three ratios are the reciprocal of these ratios. आपको मालूम है sin theta का जो reciprocal होता है that is cosine theta. It is H upon P. Clear? So इसमें क्या हो जाएगा? AC upon AB. Similarly, the reciprocal of cos theta is sec theta. It is H upon B. And the next is the reciprocal of tan theta is cot theta. and you can take as
B upon P means base to perpendicular. BC upon. So these are the 6 trigonometric ratios. और अगर जब हम आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं तो उनमें ये रेशियोज का हम यूज करते हैं. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मालूम है. अब हम इसके बेस पर कुछ आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस. पाइथागोरस थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे. So students, in a right angle triangle, you know what is Pythagoras property. What is Pythagoras theorem? This is hypotenuse, and according to the Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the right angle triangle. So we apply this Pythagoras theorem in this right angle triangle. So AC square means hypotenuse square is equal to sum of the squares of other two, AB square plus BC square. Clear? This is by what? Pythagoras property. पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. अब देखिए हम कैसे करते हैं इसमें सॉल्व, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं. वी हैव 3 साइड्स AC, AB एंड हम वन बाय वन हर साइड के स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. सो वी गेट द आइडेंटिटीज. तो फर्स्ट वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय AC स्क्वायर. सो डिवाइड द इक्वेशन बाय AC स्क्वायर. क्लियर है? हम इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो देखते हैं क्या होता है. AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. इट इज क्लियर? तो आप देखिए इस तरीके से हमने डिवाइड किया. नाउ AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर सॉल्व करें. दिस कैंसिल वन टाइम्स. Now AB square upon AC square you can write as AB upon AC whole square, and similarly BC square upon AC square you can write as BC upon AC whole square. Clear? Now what we see that this is the ratio AB upon AC. इस रेशियो को अगर आप देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल थीटा. तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेशियो को हम क्या नाम देते हैं? देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर AB एंड AC. दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस एंड दिस इज कॉल्ड sin थीटा. दिस इज कॉल्ड sin थीटा. सो व्हाट इज sin थीटा होल स्क्वायर? सो व्हाट यू कैन राइट? वी कैन राइट sin थीटा होल स्क्वायर. सिमिलरली अगर आप देखें BC अपॉन AC, इस थीटा के एस्पेक्ट में BC is base and AC is hypotenuse. So this is the ratio base to the hypotenuse, and this trigonometric ratio is called cos theta. So BC upon AC is called cos theta. So it is cos theta. So sin theta square means we can also write as sin square theta. So what it becomes? 1 is equal to sin square theta plus cos square theta. This is the identity, first identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अब ये identity है means this is true for all the values of the theta. Whatever the theta is angle, acute angle. Suppose it is 30 degree, so sin square 30 plus cos square 30 is 1. Sin square 60 plus cos square 60 is 1. So this is true for all the values of theta. That's why it is called trigonometric. So हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल दी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. नाउ वी कम टू द सेकंड आइडेंटिटी. उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे करते हैं सॉल्व. नाउ बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे.
पिछली बार हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया था इसी स्क्वायर से. नाउ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय अनदर साइड, स्क्वायर ऑफ द साइड दैट इज AB स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है. सो डिवाइड द इक्वेशन बाय AB स्क्वायर. AB स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा. व्हाट इट बिकम्स AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. इट इज क्लियर. डिवाइड किया बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले पार्ट में डिवाइड किया था AC स्क्वायर से. ना आप क्या देखिए, आप AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर यू कैन राइट एज AC अपॉन AB होल स्क्वायर. AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर कैंसिल आउट वन टाइम एंड BC अपॉन AB मींस BC अपॉन AB होल स्क्वायर. क्लियर. अब फिर से देखिए, अगर आप इन साइड्स के रेशियो को देखें तो कुछ समय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मिलेंगे जो अभी हमने पढ़ा था. कैसे मिलेंगे देखिए. पहला है AC अपॉन AB मींस हाइपोटेनस और बेस का रेशियो. क्या होता है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है cos. नाउ इट इज AC अपॉन AB का रेशियो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो. हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो देखिए, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है? अगर आप देखें P अपॉन H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होता है कॉसेक. सो इट इज कॉसेक थीटा. क्लियर. सो कॉसेक थीटा होल स्क्वायर यू कैन राइट एज कॉसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB. BC इज बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर. बेस और परपेंडिकुलर दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. क्लियर. P अपॉन B हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? tan. तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, सो इट बिकम्स cot थीटा होल स्क्वायर. क्लियर है. नाउ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. cosec थीटा स्क्वायर मींस cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. दिस इज द सेकंड. तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहली आइडेंटिटी प्रूव की थी, दूसरी आइडेंटिटी हमारी निकली cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और वी कैन से दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. तो इस तरीके से हमारी दूसरी आइडेंटिटी आई. अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पर. थर्ड आइडेंटिटी में देखिए, हम अभी तक इस इक्वेशन को AC से डिवाइड कर चुके हैं, AB से डिवाइड कर चुके हैं. थर्ड साइड इज BC. So now divide this equation again by the third side, square of the third side, that is BC square से divide करके देखते हैं क्या होता है. So let us divide again. AC square upon BC square is equal to AB square upon BC square plus BC square upon BC. Clear? Now when it becomes AC square upon BC square, we can write as AC upon BC whole square, AB upon BC whole square plus BC square upon BC square, that is 1. So फिर आप देखिए इन साइड के रेशियो से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिलता है. अब देखिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC. तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में AC अपॉन BC मतलब हाइपोटेनस और बेस का स्क्वायर. हाइपोटेनस और बेस का स्क्वायर आपको मालूम है, फिर बेस और हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है cos. सो हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो है दैट इज sec. sec स्क्वायर थीटा यहां पर आ जाएगा sec थीटा. सो इट इज sec थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC. फिर आप देखिए AB अपॉन BC इज परपेंडिकुलर ऑफ बेस, so it is tan theta. So tan theta whole square plus 1. So what it becomes? Sec square theta is equal to tan square theta plus 1. So this is the third identity. Sec square theta plus is equal to tan square theta plus 1, or we can say 1 plus tan square theta is equal to sec square.
सो स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से किसी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अप्लाई करके हम आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो 3 आइडेंटिटी हमने सीखी आज, कैसे इसको निकालते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी हमने सीखी है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड हमारी आई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड हमारी आई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो दीज आर द 3 आइडेंटिटीज। ये जो हमने आज प्रूफ किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीनों आपने किया। इसका बहुत सारा हम अप्लाई कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो इन आइडेंटिटी को हम अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टॉपिक टुडे। थैंक यू।